Good morning, students. I am your English teacher from Victorious International School, and today I will read chapter number 6, adjectives, on page number 39, okay, of English grammar. An adjective is a word used to describe or qualify a noun or a pronoun. देखिए adjective जो है, एक विशेषण जो है वह शब्द है जो देखिए describe करता है, क्या describe करता है, क्या बताता है, देखिए, और तुलना करता है, qualify, देखिए, noun और pronoun को, ठीक है. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. देखिए यहाँ जो है भिन्न भिन्न प्रकार के एडजेक्टिव हैं. नंबर 1, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव एडजेक्टिव. ओके, सो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इट describe the nature and the attribute of a noun or pronoun and it shows a quality of a नाउन. ठीक है, ये क्या आपको बताता है? देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आपको देखिए उसकी क्वालिटी पता चलती है, गुण पता चलता है आपको नाउन की. ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आपको देखिए मात्रा पता चलती है. इट मीन्स एनफ, ऑल. देखिए अब एनफ क्या हो गया? पर्याप्त. तो उसमें क्या आपको शो हो रहा है? क्वांटिटी. ठीक है, अमाउंट पता चल रहा है आपको नाउन और प्रोनाउन का. एंड डेमोस्ट्रेटिव एनाउन, यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बाय दिस, दैट, दीज, दोज. Okay, and then interrogative adjective you can easily recognize by question word, and possessive adjective you can recognize it by possessive. Okay, my, our, your, her, his, their, its, okay, ours, like it. Now exercise, underline the adjectives and state their kind इन द गिवन बॉक्सेस. आपको क्या करना है? अंडरलाइन करना है एडजेक्टिव को और उसके सामने लिखना है किस प्रकार का ये एडजेक्टिव है. जैसे राहुल हैज़ रिटन सेवरल स्टोरीज एंड सेवरल इज अ नंबर, यानी कि अनेक. ओके, सो इट्स एडजेक्टिव ऑफ नंबर. एंड अ डॉग इज वेरी फेथफुल टू इट्स मास्टर. सो फेथफुल इज अ क्वालिटी, सो यू विल राइट हियर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. And then number 3, which color do you prefer? So which is a question word and it is a interrogative adjective. And we show many animals in the zoo. Man is a number, so you will write here man is a, देखिए man is a quantity. Okay, matra, so you will write here adjective of quantity. Okay, adjective of quantity. And here John won the third prize, so third is a number, so you will write here adjective of number. A small leak is enough to sink a great ship. देखिए small and great is a quality, so you will write adjective of quality, and enough is a quantity, so you have both adjective quality and quantity. Okay, my father has brought a new car, so you have both adjective, my possessive adjective, and new adjective of quality. Okay, so you have both adjective here. Neither of the boys has done their homework, you have both adjective. Neither is a adjective of number, and there is a possessive adjective. There are tall trees on either side of the road, so tall is a quality, adjective of quality, and either is a adjective of number. Okay, here are some grapes, some is a, देखिए some is a quantity, so you will write here adjective of quantity. And adjective of quantity. Okay, and then there is little water in the bottle, so little is a adjective of quantity. And have you seen their house, so there is a adjective of possession. Okay, या possessive adjective. And then B exercise, underline the adjective in these in these sentences. देखिए आपको अंडरलाइन करना है इन वाक्यों में. एंड स्टेट वेदर दे आर एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव. देखिए आपको क्या करना है? अंडरलाइन करना है और सामने लिखना है एट्रीब्यूटिव है या प्रेडिकेटिव. एंड आई एम टेलिंग यू अबाउट एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव. लेट्स लर्न पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव. अब आपको स्थिति हम सीखेंगे किसकी? एडजेक्टिव की. ठीक है,
एडजेक्टिव्स आर यूजुअली पोजिशन्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। देखिए एडजेक्टिव जो है वो स्थिति लेते हैं नाउन और प्रोनाउन से पहले। देखिए एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये देखिए कम बिफोर द नाउन, ये आपके पहले आते हैं नाउन से पहले। दे मॉडिफाई, वे तुलना करते हैं। दे एट्रीब्यूटिव स्पेसिफिक ट्रेट्स और क्वालिटीज ऑफ अ नाउन। ठीक है, वो क्या करते हैं कुछ खास, देखिए नाउन की क्या करते हैं क्वालिटीज, गुण को, ठीक है, शो करते हैं। जैसे ही इज अ ब्रेव बॉय, अब ब्रेव क्या है, क्वालिटी है उसकी, बॉय की कि वो साहसी है ना। और अब प्रेडिकेटिव पढ़ते हैं हम। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स आर प्लेस्ड आफ्टर वर्ब्स। देखिए एट्रीब्यूटिव में क्या होता है, नाउन से पहले आता है आपका एडजेक्टिव, और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव में होता है वो आपके वर्ब के, यानी कि प्लेस्ड आफ्टर वर्ब्स, वर्ब्स के बाद आता है। ठीक है, अब जैसे डोला इज काइंड, अब हेल्पिंग वर्ब है इज के बाद क्या आया, काइंड एडजेक्टिव। ठीक है, ही लुक्ड वरीड, लुक्ड क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आया है, एडजेक्टिव वरीड। ओके, adjectives are also placed after words such as something, everything, anything, nothing, somebody, anywhere। ठीक है, इनके बाद क्या है, adjective जो है इन शब्दों के बाद देखिए आता है। जैसे let us sit somewhere quiet, quiet आ गया ये somewhere के बाद। I have not done anything extraordinary, देखिए extraordinary adjective है, anything के बाद आया है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम the green door opened slowly। ठीक है, अब ग्रीन क्या है आपका, क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, डोर क्या है, नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आया है, तो ये क्या हो गया आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। दिस स्ट्रेच ऑफ वाटर इज डेंजरस, अब देखिए इज क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद आपका एडजेक्टिव आया, ये क्या हो गया, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो गया। और देखिए मैं आपको दोनों ही चीज़ डिफाइन करती चल रही हूँ, जिससे आप एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सब भी पहचानने हैं, और ये जो पोजीशन है वो भी पहचाने। ठीक है, तो ये डेंजरस क्या है, क्वालिटी भी है, तो आप यहाँ पर देखिए, और डेमोन्स्ट्रेटिव भी है। ठीक है, एडजेक्टिव अगर आप मान लीजिए पूछ रहा है राइटर कि आपको बताना है कौन सा काइंड है, तो आप डेमोन्स्ट्रेटिव बता सकते हैं और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी बता सकते हैं। बट यहाँ पर क्या पूछ रहा है, आपको यहाँ पर एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव बताना है, वो पूछ रहा है। तो ये क्या है, वर्ब के बाद आया है एडजेक्टिव, तो ये क्या है, प्रेडिकेटिव। ओके, जॉन फील्स इल, अब देखिए फील्स क्या है, आपकी वर्ब है, वर्ब के बाद आया है इल, ये आपके ये क्या है, प्रेडिकेटिव। ओके, अ लार्ज देन नॉर्मल पे हाइक वॉज अवॉर्डेड टू द नर्सेस, अब देखिए ये आपका देखिए और लार्ज देन नॉर्मल पे। ठीक है, ये आपका क्या है, नाउन से पहले आया है, तो इसलिए आपका क्या है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सी इज अ ब्यूटीफुल, अब देखिए ये वर्ब के बाद आया है ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, तो यह एट्रीब्यूटिव। ठीक है, ये आपका देखिए, ये भी आपका देखिए नाउन से पहले है, एट्रीब्यूटिव है, और ये भी आपका क्या है, ये वर्ब के सॉरी नाउन से पहले है लेडी, तो इसलिए क्या है, एट्रीब्यूटिव। ठीक है, लेडी से पहले, नाउन से पहले। द विंडो फ्रेम वॉज ब्राउन, अब देखिए ये वर्ब के बाद आया है, तो प्रेडिकेटिव है। द ब्लाइंड मैन, मैन से पहले, नाउन से पहले आया है, तो एट्रीब्यूटिव है। द परफॉर्मेंस ऑफ आर ट्रोप वॉज ब्रिलियंट, अब ये वर्ब के बाद है, तो ये प्रेडिकेटिव है। ओके, एंड देन add a suffix to each word in the brackets to fill in the blanks with suitable adjectives। अब आपको क्या करना है, देखिए जो ब्रैकेट में दे रखे हैं उनको एडजेक्टिव आपको फिल करना है। ठीक है, बना करके। तो I just bought this beautiful piece of furniture। Rita is wearing a sleeveless gown to the party। That baby is so adorable। These meaningless letters will not help। All the things are delicate and breakable। Fill in the blanks with the comparative form of the adjectives given in the brackets। आपको देखिए comparative degree यूज करना है। My umbrella is bigger than yours। Sheila
देखिए यू हैव 3 डिग्रीज, आई एम टेलिंग यू अबाउट डिग्रीज, कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज. फर्स्ट पॉजिटिव, देन देखिए फर्स्ट जो है पॉजिटिव या सुपरलेटिव डिग्री, एंड देन कंपैरेटिव, सॉरी नॉट पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, आई एम टेलिंग यू रॉन्ग. फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री एंड देन कंपैरेटिव डिग्री एंड देन सुपरलेटिव डिग्री. ओके, पॉजिटिव डिग्री में आपका क्या होता है, देखिए उसमें एस लगाते हैं, ठीक है, सेम वैसा ही रहता है वाक्य. और कंपैरेटिव में तो हम तुलना करते ही हैं, ठीक है, दो व्यक्तियों में हम तुलना करते हैं. और सुपरलेटिव में वो सबसे हाईएस्ट होता है, यानी कि सब 2 से अधिक लोगों में तुलना करते हैं. ठीक है, अब आ जाइए, माई अम्ब्रेला इज बिगर देन योर्स. ठीक है, शीला's हैंड राइटिंग इज वर्स देन माइन. ओके, एंड देन माउंट K2 इज हायर देन माउंट Kilimanjaro in Africa. I have less number of pencils than you. My brother is shorter but heavier than me. This flower is more beautiful than that one. Rewrite the following sentences as instructed in the brackets. आपको दोबारा से लिखना है, जैसे आपको देखिए इंस्ट्रक्टेड दिए हैं तो उसी हिसाब से बनाना है. That house is not as big as this one. ठीक है, अब ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री. Mumbai is bigger than any other city in India. This is a comparative degree. Sri Priya is the most intelligent girl in the class. It is a superlative degree. Martin speaks English better than anyone. It is a comparative degree. You are not so smart as I. It is a positive degree. And then fill in the blanks with a little or a few. Please pack, देखिए आपको little और few का यूज करना है, और little और a few का according to sentence. Please pack a few orange for me. We quickly need to get a little water. I have a little time to spare. So let's go for coffee. I would like a little sugar in my coffee. We bought a few bottles of lemon juice. You have a little time left. Fill in the blanks with the superlative form of the adjectives given in the brackets. I can't find my valuable document. Jupiter is the largest planet of the solar system. She is the fastest runner in the class. This is the most interesting piece of news. Mr. James is the strictest teacher I have known. He is the most dangerous bowler in the school team. That was the best meal I have had in a long time. Bubbles, my dog, has the softest coat of fur. Mariana Trench is the deepest valley under the ocean. ठीक है, Mariana Trench is the deepest valley under the ocean. The Kian tree of Myanmar has the strangest practice of neck stretching. Number 1, study the table and fill in the blanks with the correct degrees of adjective given the brackets. Okay. Number 1, Sheila is taller than Sweta, but Julie is the tallest of the 3. Number 2, Sweta is not is has. Okay. Sweta has interested in games than Sheila, and Julie has the most among them. Sheila is the heaviest of the 3, but even Julie is heavier than Sweta. Judging
From their mode of transport, Sheila stays the nearest and Julie the farthest. Julie seems to be most popular girl in the class, but Sweta seems to be the most intelligent.